دنیا الجھنوں سے بھرے شور سے بھری ہوئی ہے اور افراتفری سے بھری ہوئی ہے، اور ہم روزانہ اس شور میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہر سمت میں خبریں اور الجھنوں کے لامتناہی دھارے آتے رہتے ہیں۔ یہ ہمارا نیا معمول ہے۔ ارے چیٹ جی پی ٹی، میرے پاس ایک سوال ہے، یہ دماغ اڑا دینے والا ہے۔ ہیلو چیٹ جی پی ٹی، مجھے زندگی کیسے گزارنی چاہیے؟ کیا یہ سنجیدہ ہے؟ کیا یہ حقیقی ہے؟ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ کیا آپ متفق ہیں؟ میں آپ کے جوابات سننے کا انتظار کر رہی ہوں۔ للی جے اے آئی چیٹ جی پی ٹی وائرل اثر اور رسوخ۔ کئی مہینوں سے یہ سوالات سوشل میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں۔ لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں، مشغول ہیں، اشتراک کر رہے ہیں، اور باقی تفصیلات ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری امت نے اس تفرقہ، دھوکہ دہی اور خیانت سے بہت کچھ برداشت کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے مسلمانوں کو ایک سیڑھی کے طور پر استعمال کیا ہے، ہمارے عقیدے، ہماری تعداد، ہماری مہربانی کا استحصال کیا ہے، اور آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ہونے والے سب سے بڑے دھوکہ دہی اور ڈیجیٹل سکیم میں سے ایک کو بے نقاب کرتے ہیں۔ للی جے کون ہے؟ ایک جینیاس ایک دھوکہ کچھ بہت خطرناک۔ للی جے ایک سوشل میڈیا احساس، ایک ایسی خاتون جس نے اچانک راتوں رات لاکھوں فالوورز جمع کر لیے۔ اس کا مواد پہلے سے تیار شدہ اے آئی سوالات، تمام سٹیج کانورسیشن احتیاط سے تیار کردہ ہے۔ اس کا طریقہ مصروفیت پر ایک شاندار کھیل۔ لیکن کیا یہ اسلام کے بارے میں حقیقی تجسس ہے؟ یہ ایک خطرناک کھیل ہے، سوچی سمجھی فریب کاری اور ہمیں کچھ ذاتی فائدے کے لیے استعمال کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا۔ یہ ایک جال ہے اور اس کے پیچھے کچھ بہت ہی زیادہ خطرناک۔ یہ سب اس وقت شروع ہوا جب میری ایک عزیز دوست، ایک انتہائی قابل احترام اسلامی اسکالر اور ایک معروف اسلامی تحقیقی ادارے کے سینئر ڈائریکٹر نے ان کے مواد میں کچھ بہت عجیب دیکھا اور قریب سے دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس شخص نے محسوس کیا کہ کچھ غلط ہے۔ جو کئی دہائیوں سے اسلامک اسٹڈیز، ڈیجیٹل ریسرچ، میڈیا تجزیے اور دھوکہ دہی میں تجربہ رکھنے والا ہے۔ لہٰذا انہوں نے اس کا ایک سادہ ویڈیو کلپ اپلوڈ کیا جس میں للی جے کے بارے میں سب سے زیادہ پوچھے جانے والے سوالات کو اجاگر کیا گیا۔ ایک چھوٹی سی ویڈیو جس میں ایک مختصر تعارف ہے، جس میں وہی سوالات پوچھے جا رہے ہیں جو ہر کسی کے ذہن میں تھے۔ کیا وہ واقعی مسلمان ہے؟ اس کی تبدیلی کی کہانی کہاں ہے؟ کیا اس نے اپنا شہدا لے لیا ہے؟ کیا وہ واقعی نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، حجاب پہنتی ہے اور قرآن پڑھتی ہے، یا یہ سب صرف کیمرے کے لیے ایک شو ہے؟ یہ ویڈیو کوئی حملہ نہیں تھا، الزام نہیں تھا، صرف ایک سوال تھا، لیکن 24 گھنٹوں کے اندر ایسا واقعہ پیش آیا جو چونکا دینے والا۔ یہ ویڈیو وائرل ہو گئی۔ اس ویڈیو کو ایک رات کے اندر لاکھوں بار دیکھا گیا، اور پھر اچانک انہوں نے انتہائی سخت ترین قدم اٹھاتے ہوئے اس ویڈیو کو فوراً ہٹا دیا اور اس چینل کے خلاف قانونی کارروائی جاری کر دی۔ اس کی نظر میں وہ چینل مر چکا ہے۔ ویڈیو اور اس چینل کے خلاف ہڑتال جاری کرنا۔ اس کی نظر میں وہ چینل مر چکا ہے۔ وہ اس چینل کو مکمل طور پر تباہ کرنا چاہتی تھی، جو برسوں سے اپنا کام کر رہا تھا اور لاکھوں لوگوں تک پہنچنے والی اس کی آواز کو خاموش کر رہا تھا۔ لیکن کیوں؟ اگر چھپانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو گھبراہٹ کیوں؟ کسی بھی عوامی شخصیت کی طرح ان معقول سوالات کا جواب دینے ہٹانے کے لیے نجی پیغام بھیجنے کے بجائے انہوں نے ویڈیو کو ہٹانے کی کوشش کی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جانچ پڑتال سے کتنی خوفزدہ تھیں۔ اگر انہوں نے صرف اس ویڈیو کو ہٹانے کا مطالبہ کیا ہوتا تو وہ اسے ہٹا دیتے، لیکن اس نے فوری طور پر انتہائی اقدامات کیے اور تمام سرخ لکیریں عبور کیں۔ اس نے جھوٹے الزامات لگائے، قانونی کارروائی کی دھمکیاں دیں، کاپی رائٹ کی شدید ہڑتال کی۔ تصور کریں، یہاں تک کہ انہوں نے وضاحت کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، یہاں تک کہ بحث کی کوشش بھی نہیں کی، یہاں تک کہ نجی طور پر اس چینل سے اس ویڈیو کو ہٹانے کی درخواست اور مطالبہ بھی نہیں کیا۔ اس کے بجائے انہوں نے حملہ کیا، کارروائی کے لیے یوٹیوب پر گئے اور یہاں تک کہ قانونی کارروائی کی دھمکی بھی دی۔ انہوں نے بس اسے پیچھے ہٹنے اور چینل سے سٹرائک ہٹانے کو کہا۔ ہو سکتا ہے کہ اپنے ایماندارانہ غلطی کی ہو۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ اس نے کیا جواب دیا۔ اپنے میری ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے اور اب مجھ سے مطالبات کر رہے ہیں۔ میں اس معاملے کو اب کے خلاف بڑھاؤں گی، جس میں حد عزت کے لیے کارروائی کرنا اور اپنے مجھے جو نقصان پہنچایا ہے۔ لیکن کیا نقصان ہے للی؟ کیا غلط معلومات ہے؟
वीडियो में सिर्फ वही सवालात पूछे गए जो सबके जहन में पहले से मौजूद थे, और इसी वक्त हमें पता चला कि वो कुछ और छुपा रही है। हमने इसके जवाब में उन्हें बरारास्त एक ईमेल भेजी जिसमें वजाहत तलब की गई कि असल में क्या हुआ था। इसके रवैये और तकब्बुर को देखो। उन्होंने जवाब दिया कि आपके जवाब ने आपके साथ मुज़ाकरात के इम्कानात को मजीद नुकसान पहुंचाया है। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मुझसे बात करो। आपने मेरी साख को नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि मेरे देखने से पहले ही आपकी वीडियो को हजारों व्यूज मिल चुके थे। चूंकि लिली जे हमसे बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए हमने इसके करीबी अंदरूनी दायरे में किसी से राब्ता किया। उनकी एक बहुत ही ज़ाती और करीबी दोस्त जो मुसलमान भी नहीं है, और उसने जो इंकिशाफ किया वो बहुत हैरान कुन था। इसने एक चैटिंग कैफे में बरारास्त लिली जे से पूछा, क्या आप वाकई मुसलमान हैं? और ये इसका सही जवाब था। लोग मुझसे कमेंट में पूछते रहते हैं कि आपका शुहदा कहाँ है, आपकी तब्दीली मजहब की कहानी कहाँ है। मुझे नहीं लगता कि मैं मुसलमान हो जाऊंगी। मुझे मुसलमानों इस्लाम कुरान की परवाह नहीं है। मुझे वो मिला जो मैं मुसलमानों से चाहती थी, शोहरत, ताकत, पैसा और असर और रसूख। मुसलमान अहमक हैं, उन्हें आसानी से हीरा फेरी की जा सकती है, जैसा कि मैं कर रही हूँ। मैं ये तमाम मुस्लिम चीज़ें कैमरे पर करती हूँ और वो मुझे वो सब कुछ देते हैं जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। ये पागल है, उन्हें गर्क होने दो। उन्होंने इस्लाम का इस्तेमाल किया, इसने हमारे अकीदे के साथ खिलवाड़ किया, इसने हमारी कम्युनिटी को इस्तेमाल किया। उन्होंने इस्लाम को इक़्तिदार के लिए, कुछ पैसे के लिए, असर और रसूख के लिए इस्तेमाल किया। इसने अपने फ़ायदे के लिए उम्मत को धोखा दिया, और हम मुसलमानों ने खिले दिल से उनका इस्तकबाल किया। एक धोखा इतना गहरा है, ये नाकाबिल यकीन है। उनसे ये भी पूछा गया कि क्या आप नमाज पढ़ते हैं, क्या आप रोज़ा रखती हैं, क्या आप कुरान पढ़ती हैं, और उसका जवाब सुनी। मैंने हाल ही में ये करना शुरू किया है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों के लिए कैमरे के सामने। हकीकत में ना मैं नमाज पढ़ती हूँ और ना रोज़ा रखती हूँ। मैं हिजाब नहीं पहनती, ये सिर्फ दिखावा के लिए। मैं ये सिर्फ कैमरे के सामने करती हूँ और फिर इसे हटा देती हूँ। इसने आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए ये सब कुछ दिखावे के लिए किया, और फिर भी इसके कमेंट सेक्शन में मुसलमान आज भी कहते हैं, माशा अल्लाह, सुबहान अल्लाह, आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत मेहरबान हैं, हमें आप पर बहुत फ़ख्र है, इस्लाम में खुश आमदीद लिली। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि आप किसका वेलकम कर रहे हैं? चीट GPT झूठ है, ये सब स्क्रिप्टेड है। एक और बहुत बड़ा धोखा, उनकी नाम निहात दिल दहला देने वाली चीट GPT गुफ्तगू, ये सब पहले से तहरीर शुदा है। वो इसे बहुत कुदरती और हकीकी बनाता है, लेकिन हकीकत में ये सब एहतियात से मंसूबा बंदी, तरमीम और ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट, व्यूज़, तवज्जो, अपनी तरक्की के लिए तरतीब दिया गया है। अगर आपको यकीन नहीं है तो इसे खुद आजमाएं। आप सिर्फ उसके सवालात कॉपी करते हैं, उन्हें चीट GPT में पेस्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। आपको कभी भी एक जैसा जवाब नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये सच नहीं है। वो 100% स्क्रिप्टेड है। ये पूरा खेल हीरा फेरी पर बनाया गया है, और अपने किसी भी वीडियो आशयोट के आखिर में वो बार बार एक ही सवाल पूछ रही है। आप लोग क्या सोचते हैं? ये काम कैसे करता है? क्या आपने इस पर तवज्जो दी? वो जानबूझकर ऐसा कर रही है, वो तुमसे कहीं अजीम चीज की तलाश कर रही है। ये वही है जो वो चाहता था और आप इसे दे रहे हैं। ये एक खेल है और आप खिलाड़ी हैं। और सबसे बुरी बात यह है, इसने दूसरे मज़ाहिब के लोगों में इस्लाम की साख को नुकसान पहुंचाया है। वो भी यही सवालात पूछने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नतीजा कुछ मुख्तलिफ है। लिहाजा वो समझते हैं कि ये सब जाली है, और जिंदगी भर उनके जहन में इस्लाम का मनफी तासुर पैदा होता है। बस इसकी वीडियो के कमेंट में नीचे जाएं और आपको इसके बारे में हजारों कमेंट्स मिलेंगे। इसके अपने दोस्त के जरिए हमने इससे भी ज्यादा परेशान कुन चीज का इंकिशाफ किया। लिली जे के खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसियों से राब्ते हैं, खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया में सेहूनी एजेंसियों के साथ। वो बराह रास्त उन ग्रोहों की माली इमदाद और हिमायत में मुलव्वस है जो हमारे फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 16 माह से हमारे फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों को नस्ल कशी का सामना है। इसने उनके लिए कुछ नहीं किया, उनके लिए सिर्फ एक लफ्ज़ भी ना कहो। क्या आपने कभी उसके अपने मुंह से कुछ सुना है? वो दुनिया भर के मुसलमानों से अतियात, स्पॉन्सरनग और मुख्तलिफ फंडिंग ज़राए से लाखों डॉलर वसूल कर रही है। और फिर भी ये औरत जो हमारी उम्मत को नुकसान पहुंचाने वालों के साथ काम कर रही है, इस्लाम का चेहरा बन चुकी है। उन्होंने हाल ही में कुछ बुरे मकासद के लिए कुछ बड़े इस्लामी स्कॉलर्स को इस्तेमाल करना और मुसलमानों पर अपने एजेंडे को मजबूत करना शुरू किया है। तो मैं आपसे एक बार फिर पूछता हूं कि उन्हें इस ओहदे पर किसने रखा? किसने इसे हमारी कम्युनिटी के सामने धकेल दिया? मुसलमानों की अंधाधुंध पैरवी करने से कौन फायदा उठाता है? जब उन्होंने इस वीडियो को हटाने और हड़ताल जारी की तो चंद घंटों के अंदर ही इससे भी बदतर वाकया पेश आया। आप इस पर यकीन नहीं करेंगे, गूगल ने इस इस्लामी चैनल की वेबसाइट को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया। बरसों की तहकीक को खत्म कर दिया गया, लाखों घंटे का काम और मवाद मिटा दिया गया।
लाखों व्यूज गायब हो गए। ये सब एक औरत की वजह से हुआ। एक औरत जो सवालात को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसे ये ताकत कहाँ से मिली? ये सिर्फ कॉपीराइट का मसला नहीं है, ये हम पर खुलम खुला हमला है, ये मुसलमानों पर खुलम खुला हमला है, लेकिन हम खामोश नहीं होंगे। इस्लामी चैनल अब इस सरासर नाइंसाफ़ी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहा है ताकि उनसे जो कुछ भी लिया गया और खोया गया है इसे बहाल किया जा सके। लेकिन इस लड़ाई में कुछ माली मदद की ज़रूरत है। वो अकेले ये काम नहीं कर सकते, हमें कम्युनिटी की मदद चाहिए। उन्हें पहले से कहीं ज़्यादा आपकी इमदाद की ज़रूरत है। मैं अतियात का लिंक नीचे दिए गए तबसरे में पिन करूँगा। बराए मेहरबानी उन्हें फराखदिली से अतियात दें। इस पैगाम को दूर दूर तक शेयर करें और उनकी कामयाबी और इंसाफ के लिए दुआ करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आए हैं। आप उसके मद्दा हो सकते हैं, आप उसके पैरोकार हो सकते हैं, लेकिन सच बोलना चाहिए और उसकी वजह से हमारे साथ ऐसा ही हुआ। लिली जे ने शोहरत, असर और रसूख और पैसे के लिए मुसलमानों का इस्तेहसाल किया। इसने लोगों को खामोश किया जिन्होंने इससे सवाल किया। वो झूठे इल्जामात के पीछे छप जाती है। उन्होंने फाल तौर पर उम्मत के खिलाफ काम किया और फिर भी बहुत से लोग इसका दिफा करते हैं, इसकी पैरवी करते हैं, अपने आप से पूछते हैं कि ये हमें किसकी हिमायत करनी चाहिए। फैसला अब आपका है कि इसने मेरी दोस्त के साथ किया। इसने कोई कार्रवाई न करने का फैसला किया। इसने जवाब में इससे कहा कि हमने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया है और आपके खिलाफ कोई दुनियावी कार्रवाई नहीं की। ताहम आपके झूठे इल्जामात और हम पर बोहतान के साथ साथ अपने अल्लाह के रास्ते में जो नुकसान पहुंचाया है और उसके पैगाम को आखिरत में लाखों लोगों तक पहुंचने से रोका है, उनका जवाबदेह आप खुद होंगे इंशाअल्लाह। अब आपके पास एक इंतखाब है। क्या तुम इस बोझ को हमेशा की जिंदगी में ले जाओगे और आखिरत में इसकी पूरी जिम्मेदारी बर्दाश्त करोगे या दुनिया में इसे साफ करोगे? फैसला आपका है। लेकिन इसने इसकी कोई परवाह नहीं की। अल्लाह ताला हमें हक की तरफ रहनुमाई फरमाए और फरेब से महफूज रखे। आमीन।